How did this homeopathy start? Today we live in the fast moving world. In this, why did you choose the homeopathic field? होम्योपैथी डॉक्टर बनना वॉज माई ड्रीम। तो इंटरनली रूट कॉज पे ट्रीट करना और इंडिविजुअलिटी पे ट्रीटमेंट देना और वो ट्रीटमेंट लॉन्ग लास्टिंग रहना आफ्टर द स्टॉपिंग ऑफ मेडिसिन और आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ ट्रीटमेंट, ये सिर्फ होम्योपैथी में है। सो होम्योपैथी इज अ हीलिंग मशीन. It is safest medicine I have seen ever. I have seen patients recovering in 1.5 months or 2 months. In today's world, we have seen 90 to 95 people are affected with this. Research indicates that around in India, young people are facing the migraine and anxiety issue. This rate is very high. Right. What do you think? Why it is happening? The main factors are कि उनकी lifestyle, stress, अभी जैसे कि competition बहुत है. Okay. So everyone is suffering from stress and anxiety. But how to deal with this, ये आना चाहिए. Yes. So no one is listening to anyone. ऐसा एक कोई तो होना चाहिए जिससे we can share everything. I'll suggest homeopathy is the best treatment for migraine, anxiety, depression. Problem in this young generation, I am seeing that they are not sharing, they are not sitting with their family and sharing everything what problem they are facing in their own life. Because of this suppression, emotion level पे जो suppressions होता है कि एंगर हो गया, रोना हो गया, ये जो सप्रेस कर रहे हैं इसके वजह से भी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है. तो सप्रेस करना इज नॉट द सोल्यूशन. व्हेन लेडी केम टू मी, शी केम विथ वॉकर इन हर हैंड. व्हेन शी एंटर्ड माय केबिन, डोर में ही खड़े रह के शी वाज जॉइनिंग हर हैंड्स. मैं ऐसे ही स्टेज में हूँ सिंस 3 to 4 years. मुझे नहीं रहना है, कुछ तो इंजेक्टेबल दे दो so that I can die peacefully. It affected me. What are the biggest misconception people have about homeopathy? That it is slow reacting medicines. I hope some people will take positive things from this and they will include in it. Hello everyone. Today we have very special guest with us, Dr. Prajakta Swami, a dedicated homeopathy doctor who has been helping people not just through medicines but through care, compassion and the patient first approach. आजकल हमारे फास्ट लाइफस्टाइल में, इस भागदौड़ की ज़िंदगी में एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, माइग्रेन ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं. इसीलिए आज हम बात करेंगे होम्योपैथी के रोल के बारे में. उससे जुड़े कुछ कॉमन मिथ्स को समझेंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की इंपॉर्टेंस जानेंगे और डॉक्टर प्राजक्ता मैम के इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में भी बात करेंगे. अगर आप होम्योपैथी के बारे में जानने के लिए क्यूरियस है, अपनी हेल्थ और लाइफस्टाइल को बेटर बनाना चाहते हैं, तो ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है. वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में जो बातें हैं वो आपके हेल्थ के लिए बहुत मदद करेगी. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स वेलकम डॉक्टर प्राजक्ता स्वामी ऑन ह्यूमन वाइब्स पॉडकास्ट. और पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है. अगर आज का कॉन्वर्सेशन आपके लाइफ में वैल्यू ऐड करे, अगर आप कुछ सीखे और इंस्पायर हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. बिकॉज योर सपोर्ट मोटिवेट्स अस, इंस्पायर्स अस टू वर्क हार्डर एंड ब्रिंग पावरफुल गेस्ट, पावरफुल स्टोरी एंड ऐड वैल्यू टू योर लाइफ. First of all, thank you very much for joining Human Vibes podcast. Welcome on Human Vibes podcast. Thank you. And it's honor to have you today with us. Yes, and I'm really sorry for taking your Sunday. It's relaxed day for you. Yeah. It's okay. And I really appreciate that you are giving time us today. Thank you very much. Today we live in the fast moving world and everything is faster and young people have so many opportunities to choose the career, and in technology is also very fast. In this, just I want to know, why did you choose the homeopathic field? And because people want quick results. Yeah. And also, how did you enter into this, or was this your dream from the beginning itself? Could you Okay. please share? So it's very good question, Nikunj. Thank Okay. So homeopathy doctor बनना was my dream. Okay, because in my family, in front of my eyes, ये live example था. I have seen my father recovering from homeopathy where the doctor said कि there is no treatment for this. Okay. So there were many members in my family कि जिन्होंने होम्योपैथी से, जो बाकी डॉक्टर्स नहीं कर पाए, होम्योपैथी से वो बेटर हुए थे. तो बचपन से जब से मैं समझ में आया है कि क्या करना चाहिए, तब से मैंने ये देखा है. तो तब से मेरा सपना था कि यस, आई वांट टू बिकम अ होम्योपैथी डॉक्टर, बिकॉज मुझे सिर्फ सिम्टम्स को ठीक नहीं करना है,
रूट कॉज को ठीक करना है, हाँ हाँ इंडिविजुअलिटी को देख के व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ द डिजीज, उसको ठीक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मल्टीपल टैबलेट्स खा के, इंजेक्शंस लेके, यू नो 1 ईयर टैबलेट खा के भी अगर रिकर हो रहा है तो समवेयर द प्रॉब्लम इज इनसाइड, नॉट जस्ट रिकॉर्ड नहीं हो रहा है तो या तो इंटरनली रूट कॉज पे ट्रीट करना और इंडिविजुअलिटी पे ट्रीटमेंट देना, और वो ट्रीटमेंट लॉन्ग लास्टिंग रहना आफ्टर द स्टॉपिंग ऑफ मेडिसिन और आफ्टर स्टॉपिंग ऑफ ट्रीटमेंट, ये सिर्फ होम्योपैथी में है। सो इसलिए मुझे होम्योपैथी डॉक्टर बनना वाज माय ड्रीम। Okay, Yeah, you became that. yeah, I have Is there done. anybody in your family, in your bloodline, who is doctor? Yeah, my elder brother. Okay, who is doctor? He's allopath. Wow, there actually. is healthy competition in family Yeah, only, right. allopathy and homeopathy. Yeah, right. Actually, the very funny part is Huh? when he was in his you know children era, जब वो छोटा था, Okay. he has recovered from homeopathy. Okay. He used to take only homeopathy tablets. हाँ. No other tablets he used to take. मतलब एलोपैथी उसको होता ही नहीं था। You know, फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ा थोड़ा कड़वा रहता है उसके लिए, तो होम्योपैथी से ही ठीक होता था। इट मे बी एनी इश्यूज, ओके, सो लेकिन अभी ही इज एलोपैथी डॉक्टर एंड मी एंड ही हैज सम healthy debates on over yes. it. So yeah. That's nice. Yes. What was the biggest challenge of you being a doctor? Okay. There were multiple challenges, but the main challenge was कि होम्योपैथी डॉक्टर के पास पेशेंट लास्ट में आते हैं। हाँ. जैसे कि मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हो गया, सर्जरीज हो गए, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हो गए, या फिर होम्योपैथी में ही मल्टीपल डॉक्टर्स हो गए, ओके, या फिर मसाज हो गया, थेरेपी हो गया, सब कुछ करके फिर लास्ट में हमारे पास आते हैं। ओके, इट मे बी थ्रू बाय रेफरेंस और इट मे बी थ्रू ऑनलाइन देख के आते। तो उनको अगर वो 3 साल से ट्रीटमेंट ले रहे हैं एंड दे आर नॉट रिकवरिंग, तो उनको वो एश्योरेंस देना और उनको बताना कि क्यों मैम आपको ठीक कर सकती हूँ, वो भी विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स, कैसे मैं कर सकती हूँ, उनका वो ट्रस्ट जीतना और उनको हमसे बॉन्डेड रहना, मतलब कनेक्टेड रहना, ये बहुत चैलेंजिंग फेज था मेरे लाइफ में। सो या आई हैव ओवरकम ओवर दिस बाय माय ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली बाय रिजल्ट्स ओनली। ओके, शेयरिंग इज द अदर पार्ट, उसमें से पेशेंट्स कनेक्ट नहीं रहेंगे, ऑब्वियसली उनको इफेक्ट चाहिए, तो इफेक्ट देना was most challenging part for me. Right. So yeah. How did this homeopathy start? How it started? And how it works internally? So homeopathy is a very ancient line of treatment or line of pathy. इनका जो इन्वेंशन किया है, जिनको हम बोलते हैं डॉक्टर सैमुअल हैनीमन सर, वो भी एक एलोपैथ डॉक्टर ही थे इनिशियली। लेकिन जब इन्होंने देखा कि मेडिसिन देते हैं तब तक पेशेंट्स ठीक रह रहे, मेडिसिन स्टॉपेज के बाद उनको जो सिम्टम्स है वो वापस आ रहे हैं, तो व्हाई इट इज, तो उन्होंने उनके ऊपर वर्क किया, उन्होंने खुद के ऊपर ही वो एक्सपेरिमेंट किया। ओके, उन्होंने खुद के ऊपर ही कुछ मेडिसिन थे, जैसे कि होम्योपैथी प्लांट्स और लीव्स से बनाए जाते हैं कुछ डाइल्यूशंस मेडिसिन, तो उन्होंने उनके ऊपर ही एक एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया, उसके ऊपर उनको फीवर आया, जिस मेडिसिन को लेकर उनको फीवर आया वही मेडिसिन ने उन्होंने उसको ट्रीट करने के लिए लिया, एंड ही सॉ द बेस्ट रिजल्ट। और उन्होंने वो ट्राई करने के बाद स्टॉप किया एंड ही वेटेड फॉर लॉन्ग, और उन्होंने देखा कि वो रिटर्न नहीं आ रहा है, रिकरेंस नहीं है, एंड सो ही he founded it, he invented the pathy known as homeopathy. Yeah. Really, homeopathy takes time. It's a myth actually. Okay, homeopathy जो लोग बोलते हैं कि it takes one year, 2 year to heal, but it's not like that. In my practice, I have seen patients recurring within 1 month, 2 months also. So it depends on how efficiently you are taking case, how efficiently your diagnosis, and how efficiently you are giving the medicines. So it's all on this. Okay, it's great. Yeah. What was the most challenging phase of your journey as a doctor?
in the initial stage and now? Yeah, in initial stage, obviously the most challenging phase was my studies. Okay, so I was very focused for my studies and my practice. लेकिन सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था एक बार जब प्रैक्टिस में आते हैं तो पेशेंट्स का ट्रस्ट ये हमारे पास रहना और पेशेंट्स हमारे साथ ही रहना ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग फेज था मेरे लिए बिकॉज पेशेंट कम टू होम्योपैथी डॉक्टर आफ्टर ट्राइंग मल्टीपल डॉक्टर्स जैसे कि एलोपैथ्स हो गए आयुर्वेद्स हो गए ओके सो इतना सब होने के बाद दे आर नॉट गेटिंग रिलीफ and I have to assure them that homeopathy can treat you and it can relieve you from the root and permanently. Okay. So obviously ये बहुत challenging phase था मेरे लिए. Okay. In college days only you started practicing this? Yeah. In a hospital? Yeah. Since my college days. When did you enter into the business? Hospital, own clinic? It's been 6 to 7 years. Okay. I have been in my setup. Before marriage also I was in my setup and now also it's been 6 to 7 years now. Okay. Where did you work in the initial stage? I worked at my hometown Nasik and I started my journey from there itself. Okay. Many people have heard about homeopathy and only few people know about that. If somebody asks you what is homeopathy, how would you tell them in a simple words? Okay, so homeopathy is a healing machine. Healing machine. Yeah, homeopathy is a healing machine. It focused on your individuality, not just कि पेन हो रहा है. External symptoms से फोकस नहीं करता है. It goes internally. Individuality का perception लेके होम्योपैथी ट्रीट करता है रूट कॉज पे. So in simple language, it's a modern science and the most important, it's the first line of treatment. Okay. इससे कोई side effects नहीं है, इसमें कोई steroids नहीं है. So homeopathy is a very good pathy. You can continue for years and years. Is there any city or is there any state in India that they first choose to go homeopathy then allopathy? Is there any city? Yeah, we can say West Bengal. Okay. In Kolkata, homeopathy एकदम इनिशियल फेज. लोग उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं as compared to other pathies. First they go to homeopathy. First they go to homeopathy or they go for homeopathy doctor for any case, for any disease. Okay. Yeah. How would you differentiate homeopathy, allopathy and Ayurveda? Allopathy is a modern science also. एलोपैथी को कुछ लिमिटेशंस है. ओके और एलोपैथी के पास जहाँ एलोपैथी खत्म होती है वहां से होम्योपैथी का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. Okay, means allopathy doctor say there is no cure for this disease and homeopaths start curing that disease from that stage. Okay, so and Ayurveda is ancient science. Okay, it's been practiced since our Ayurveda's gurus and were there from that phase. Homeopathy ऐसा एक पैथी है जिसमें we can give it to from pregnant ladies to newborn childs or to the old age people. Okay. So we can practice at any on any generation on any age. It is safest medicine I have seen ever. Okay. So homeopathy also has its limitations. When there is emergency, of course we are supposed to go to allopaths. But जहाँ पे एलोपैथ्स का या आयुर्वेदिक का खत्म हो जाता है कि we can't do this, their homeopathy stands. Even I have heard about this. मतलब after starting the homeopathy treatment, yes, they will मतलब it works for more than 4 to 5 years and it will continuously working. If we choose the allopathy, then if you take, it will be the quick relief, but it will not for the long term. It is quick relief but not long lasting. Yes. होम्योपैथी थोड़ा स्लो है बट वो भी एक मिथ है. आई हैव सीन पेशेंट्स रिकवरिंग इन 1.5 month और 2 months एंड जो इफ उनका रिपोर्ट्स रहते हैं या फिर उनका जो इफेक्ट रहता है इट लास्ट फॉर मेनी इयर्स. Okay. One of the common question that people have is, can allopathy and homeopathy can we take it together or not? Yeah. So yes, I have also gone through these questions in my clinic multiple times. So yes, you can take homeopathy and allopathy together, but it should be within some gap. Okay. Like if you are taking allopathy, then it should be after 15 minutes you are supposed to take homeopathy. Because when two pathies
with same context coming together, it can affect you. Okay. But this there are allopathy and homeopathy are two different pathies with different medications with different content in the medicines. So obviously it is not going to affect your or your line of treatment, or there will be no any side effects for it. So it is safe to take allopathy and homeopathy together. Yeah. I have heard that. Even my friends were having the questions because for their parents, Yeah. and they take the allopathy treatment for their blood and what many diseases. Yeah, right, But right. they have one question that homeopathy can be taken to with allopathy or not. Yeah. Yes, See, that- in today's world, we have seen at every age, patients are there of BP, diabetes, yes, thyroid. Yes. So 90 to 95 people are affected with this diseases. 90 to 95. Yes, yes. These are very common now. BP, diabetes, and thyroid. Okay. So whenever a patient in my clinic is coming of any age, it may be 18, 20, 30 or 40s. So when I ask them, are you suffering from any BP or any thyroid disease? So they say yes, and they are on that tablet since many years. So I gave them treatment for whatever cause they have come for. And for BP and diabetes also I give them treatment. Okay. And I have seen patients recovering for that also, and I have stopped their medications of allopathies. Okay. Yeah, so with allopathy only, I have given homeopathy treatment. Okay. So it has good results, of course. It works. Yeah, it works. And you said, right, 90 to 95% people are suffering from BP, Yeah. diabetes and all. What do you think? Why it is happening in this generation? And what category of age, what is the range of the people is having more, and who is facing the more disease of this? Okay. So nowadays, diabetes, BP, thyroid is common in young age also. Means students also, and 20s, 30s also. So the main causes, there are multiple causes. Okay. But the main cause is lifestyle, stress, and nowadays young generation are very focused for their career. Right. And they have financial issues, financial stress, and most of the time they keep busy with their laptops, mobile phones, and all this. There are multiple causes, but these are the main causes which are affecting their health, mental health and physical health as well. Even after realizing that, they are not taking care of themselves right, because right, of the right. responsibilities, and they are so much busy. Even Yeah. in the corporate life, we do night shift. Yeah. So all this stuff is affecting your health. When youngsters' health mainly affecting by all this, this stress life or sedentary life. We can say there is no time for themselves. They are very focused for career issues and for financial issues. So these are the main symptoms, main causes for affections. आजकल जो young generation है, we are so much busy in our work and all everything, and when we get some headache or stomach pain or any body pain, Right. what we do, we take some painkillers, or if we feel we have acidity, we take the acidity tablet and we get the quick relief. Right. What do you think? Is there any future side effect on this, taking this medicines or not? See, What do you think? I have seen nowadays कि लोग खुद ही डॉक्टर हो गए हैं. उनके जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनके बॉडी में, दे जस्ट पुट इट ऑन गूगल, एंड जो मेडिसिन है वो खुद जाके लेके आते हैं. ओके. एंड इजी हो गया है. लोगों को इमीडिएट इफेक्ट चाहिए. टैबलेट लिया, ठीक हो गया, फास्ट रिजल्ट चाहिए. यस, फास्ट रिजल्ट. तो उसके लिए क्या हो रहा है, सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, फीवर आ गया, लूज मोशंस हो रहे, दे जस्ट गो टू द मेडिकल एंड दे जस्ट टेक मेडिकेशंस. और ये फ्रिक्वेंटली हो रहा है बिकॉज ये आदत हो रही है बॉडी को इमीडिएट, मतलब वो उनकी बॉडी को फाइट ही नहीं करने दे रहे. ओके, वी शुड गिव आवर बॉडी टाइम टू फाइट अगेंस्ट आवर इम्यूनिटी. सो लोग ये कर ही नहीं रहे. इमीडिएट रिलीफ के लिए टैबलेट्स लेना, पेन किलर्स खाना, एंटासिड्स लेना, तो ऑब्वियसली इट विल अफेक्ट समवेयर. लॉन्ग स्टैंडिंग के लिए आप अगर ये टैबलेट्स ले रहे हो और आप डिपेंडेंट हो रहे हो, तो ऑब्वियसली ये मेडिसिन
साइड इफेक्ट्स देने ही वाले हैं हम्म। आगे जाके, आपके लीवर, किडनी या मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ, एनीथिंग, Okay. it is going to affect. It's dangerous Yes, in yes, future yes, after some period of time. yes, and they have multiple side effects, Hmm. not just one. Okay. There are, जैसे कि किसी का वेट गेन हो रहा है, Hmm. किसी को लीवर पे स्वेलिंग आई है, Hmm. किडनी प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, Hmm. ओके, अगर वो टैबलेट नहीं खाया तो नींद नहीं आ रही है, हाँ, ये वो भी भी सुना, पेशेंट्स yes. मैंने देखे हैं, Right, राइट. सो वो टैबलेट नहीं खाया तो एंजाइटी हो रही है, Hmm. पिल्स पे डिपेंड हो रहे हैं पेशेंट्स. हाँ. सो दिस इज रॉन्ग. और ये ज्यादा हम लोग एक यंग एज में देख रहे हैं, जैसे हाँ. यू कैन से जेंजी पीपल, Yes. जेंजी लोग, या फिर एनी एज 20s 30s 40s में. Mm-hmm. So this is wrong. It's very wrong. Is this because of the lack of patience? Lack of patience. Many people have lack of education also. We can say they're educated. They know what are the consequences, but still they choose this path because तब के लिए उनको ऐसा लगता है कि इमीडिएट इफेक्ट इम्पोर्टेंट है. हाँ. और फिर मुझे फोकस करना मेरे काम पे, मेरे ड्यूटी पे. ये प्रोफेशनल चूज कर रहे ओवर पर्सनल. हाँ. So I need to tell people that don't do this. Okay, whatever you are suffering from, you have multiple options to come over it. So rather than choosing medicines, allopathy medicines or any tablet, choose wisely what your body needs. Right. Okay. So Exactly. I'll suggest people to think over it. Before going for that. Yeah. You have seen people, अगर कुछ हो रहा है, मतलब नॉर्मल हेडेक also, Right. they feel insecure Yeah. and they panic होते हैं and they take the tablet Right, immediately right, and they get that quick result, they feel relief, Yeah. again same day repeat. The Yes, cycle yes. is repeating. Yes. And इसके वजह से क्या हो रहा है ना, वो डिपेंडेंट हो रहे हैं. Okay. Right. They are getting dependent on pills. हाँ. मतलब बॉडी को वो टाइम ही नहीं दे रहे. बॉडी हैज ओन इम्यूनिटी, हाँ. ओन फाइटिंग फैक्टर है कि वो फाइट करके वो रिजॉल्व करेगी आफ्टर 2 days और 3 days. लेकिन Okay. उतना भी पेशेंस लोगों में अभी नहीं है. सो अभी कुछ हुआ, इमीडिएटली टैबलेट लिया, हो गया, सबसाइड हो गया, तो उनको लगता है ये क्योर हो गया, बट इट्स नॉट लाइक दैट. दैट टैबलेट इज अफेक्टिंग यू इंटरनली, योर इंटरनल ऑर्गन्स. What are the most common issues the patients come with to you in your hospital? Mostly I have all age patients. Okay, so जैसे कि न्यूबॉर्न से, बच्चों से, यंग एज में, और ओल्ड एज. Okay. सो ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन इज जॉइंट पेन, Mm-hmm. है ना, मतलब घुटने दर्द हो रहे हैं, हाँ. हाथ पैर दर्द हो रहे हैं, या फिर बीपी, डायबिटीज एंड थायराइड. दिस इज मोर कॉमन इन ओल्ड एज पीपल. Okay. अभी 20s 30s का देखा जाए तो दे हैव एंजाइटी इश्यूज. ओके, एंजाइटी, इंसोम्निया, मतलब रात भर नींद नहीं आती है. ओके, स्ट्रेस के वजह से उनका बीपी शूट हो रहा है. ओके, या तो हाइपोग्लाइसेमिया हो रहा है, Okay. मतलब What is hypoglycemia? शुगर कम होती है. Okay. खून में जो शुगर एक लेवल पे होनी चाहिए वो कम होती है, उसके वजह से डिजीनेस होता है, वर्टिगो आता है. सो आई हैव सीन दिस पेशेंट्स उनके यंग एज में. Okay. जो कि नहीं होना चाहिए. हाँ, दे हाँ. शुड नॉट सफर फ्रॉम ऑल दिस स्टफ. बट अभी ज्यादातर देखा जाए तो एंजाइटी इश्यूज बहुत है, Well, yes, डिप्रेशंस. even research indicates that around in India, around young people are facing the migraine and anxiety issue. This rate is very high. Right. What do you think? Why it is happening? Again, I'll say this: there are multiple causes, but the main factors are कि उनकी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस. अभी जैसे कि कंपटीशन बहुत है. ओके, फाइनेंशियली स्टेबल होना है, ये बहुत यंग एज में ही रशिंग टू सम थिंग्स. और कंपटीशन में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये सब चीजें, फिर उसके वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर स्ट्रेस के वजह से नींद नहीं आना, इंसोम्निया. अभी अगर रात की प्रॉपर नींद नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली सम सिम्टम्स यू विल अफेक्ट, योर बॉडी विल गिव यू सम सिम्टम्स. ओके, जैसे कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहे हैं. लेडीज मीन्स मेल्स या फीमेल्स, दोनों के इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, तो उसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. उसके स्ट्रेस के वजह से पीपल गो अट्रैक्टेड टुवर्ड्स स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एंड दिस हैबिट्स. सो या दिस आर सम हैबिट, दिस आर सम कॉजेस. उसके वजह से माइग्रेन, डिप्रेशन बढ़ रहा है.
Even I've seen that the migraine rate is very high for the corporate people. Yeah. I always see that every evening they have this headache, this part and this part is paining. Right. Every day they tell that. Right. और उसके लिए अगेन दे आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन ड्रग्स. हाँ. ओके, वो खाए, वो लिया तो अच्छा लगता है. ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कुछ थोड़ा सा पिया तो अच्छा लगता है. सो दे आर गेटिंग डिपेंडेंट ऑन दिस नो यूज स्टफ. इससे कोई कुछ होता नहीं है, लेकिन वो मेंटल सेटिस्फैक्शन है कि हाँ दिस थिंग्स आर रिलीविंग मी. ओके. या व्हाट दे शुड डू अकॉर्डिंग टू यू? बेसिकली तो लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करना चाहिए. स्ट्रेस सबको रहता है, पर्सनल प्रोफेशनल लेवल पे. एवरीवन हैज समथिंग टू अचीव, तो एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम स्ट्रेस एंड एंजाइटी. बट हाउ टू डील विद दिस ये आना चाहिए. जैसे कि एक्सरसाइज कर लो, योगा कर लो, मेडिटेट कर लो, या फिर शेयर करो. अभी क्या हो गया, किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, सो नो वन इज लिसनिंग टू एनीवन. सो टाइम ऐसा एक कोई तो होना चाहिए जिससे वी कैन शेयर एवरीथिंग. सो उससे भी अच्छा लगता है. यू फील बेटर, यू फील रिलैक्स. सो या दिस आर सम सॉल्यूशंस, यू कैन गो फॉर इट. और बाकी चीजों के लिए डॉक्टर्स है ही. सो इफ यू आर रियलाइजिंग कि सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं, सो गो टू अ प्रॉपर डॉक्टर एंड डायग्नोस इट and take proper treatment for it. Tell me one thing, would homeopathy help for the migraine and anxiety patients? Yeah, of course. Homeopathy will give you good results. Okay. For this migraine में, क्योंकि एलोपैथ्स के मींस एलोपैथी या दूसरा कोई ट्रीटमेंट लोगे तो दे विल जस्ट गिव यू सम पेन किलर्स. ओके, पेन किलर खाओगे, यू विल फील गुड फॉर 2-3 days, नॉट मोर देन दैट. अगेन कुछ मेंटल ट्रिगर होगा. ओके, सो वो माइग्रेन अगेन अफेक्ट होने वाला है, या फिर एंजाइटी होने वाला है. सो उसके लिए उसके रूट तक जाना कि प्रॉब्लम क्या है, व्हाट दिस पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एग्जैक्टली, वो जान के उसको वैसे अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट देना इज नेसेसरी. इट विल टेक सम 2 to 3 months or whatever it is the time period, but it will stay, the result will stay with you for long. Okay. So homeopathy, I'll suggest homeopathy is the best treatment for migraine, anxiety, depression. Okay. Yeah, I have seen people. Yeah. And while giving the treatment, would you more focus, the patients you are getting, right? Are they online, virtual treatment they are getting, or the directly they are walking in hospital? Yeah. So or virtual also you are treating them? Virtual also I'm treating them. Okay. Online consultations are available. So we do WhatsApp calls. Okay. जैसे कि history important है homeopathy में. Yeah. So I take detailed history from. Yeah, I have seen that. Whenever new patient comes to homeopathy doctor, they spend around 45 to 1 hour or more than 1 hour with that patient to understand in detail about their history and the symptoms what they have. Right. Yes. What is the benefit of this for you also, and what is the benefit of this for that patient also? Right, what is that, please? Okay. So निकुंज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि होम्योपैथी इंडिविजुअलिटी पे फोकस करती है. सो इंडिविजुअलिटी मीन्स यही हुआ कि एवरी पेशेंट फॉर अस इज डिफरेंट, दो दे आर सफरिंग फ्रॉम सेम डिजीज. जैसे कि माइग्रेन है दोनों को, लेकिन दोनों को मेडिसिन अलग अलग ही जाएगा, बिकॉज दोनों हमारे लिए अलग है. उनका नेचर अलग है, उनका लाइफस्टाइल अलग है, उनके चॉइसेस अलग है. ओके, सो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट और मेडिसिन बेस्ट रहते हैं. सो इसलिए होम्योपैथी में केस टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मीन्स वी से और जो गुरुज है वो कहते हैं कि केस टेकिंग में ही यू सॉल्व 50 to 60% ऑफ केस. Right. Yeah. Would they share everything with you? इनिशियली सम पेशेंट्स आर जो इंट्रोवर्ट रहते हैं, जो सिक्रेटिव रहते हैं, जिनको शेयर करना अच्छा नहीं लगता, उनको थोड़ा टाइम लगता है. Okay. सो हम भी प्रेशराइज नहीं करते. जो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, बेसिक उनसे बात करना, फ्रेंडली बात करना, टॉक्स करना, फिर धीरे धीरे पेशेंट्स ओपन अप होना स्टार्ट कर देते हैं. Okay. या इमोशनली पूरा वल्नरेबल, इमोशनली पूरा एक्सप्रेस होता है. सम पीपल क्राई आउट लाउड. ओके, सम पीपल एकदम डिप्रेस हो जाते हैं हमारे सामने, वो जोन में चले जाते हैं जब बताते. सो या वो अच्छा लगता है कि पेशेंट्स आके, और सम पेशेंट्स से कि मैम आपसे बात करके ही हमको बहुत अच्छा लग रहा है. इट फील्स लाइट व्हेन वी टॉक विथ यू.
Because in real world, Yeah. seriously, the people are not having the close people to share with them, close Yeah. friends or close in anybody in family members. Right. Nobody is there with them to share everything, to be a vulnerable, to express all the emotions to them. True. If a homeopathy doctor sit with them for more than 1 hour and they share everything with you, definitely they would feel relief in that Yeah. conversation itself. Yeah, right. So ये जब पेशेंट बोलते हैं कि वी फील लाइट और वी फील गुड व्हाइल टॉकिंग टू यू, तो ये अच्छा लगता है एक डॉक्टर को कि या मीन्स उनको ऐसा लगता है कि कोई तो है हमारा सुनने वाला. ये एकदम रश एकदम यू नो वर्ल्ड में someone is there who are listening to us, who are listening to our sad things, because no one is there now. And they are even insecure to share with their family. They are hiding so many things. The problem in this young generation, I am seeing that they are not sharing, they are not sitting with their family and sharing everything what problem they are facing in their own life. Right. Yes, they are hiding so many things from their family. And because of this separation, इमोशन लेवल पे जो सेपरेशंस होता है कि एंगर हो गया, रोना हो गया, ये जो सप्रेस कर रहे हैं इसके वजह से भी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है. तो सप्रेस करना इज नॉट द सोल्यूशन. कोई भी होने दो, कोई तो एक ऐसा होना चाहिए जिससे हम सब कुछ शेयर कर सके. तो यस, दिस इज द मेन क्योर. हाँ, This is the reason you spend more time with your patients. we spend more time with our patients. होम्योपैथी में ही है सिखाया गया है कि yes, case taking is important. Let the patient talk. हम कुछ नहीं बोलते हैं, पेशेंट को ही बोलने देते हैं. उनका होने के बाद ही what we feel to ask them, we ask them. But till then we allow patient to talk. So it may take 1 hour, 2 hour, 3 hours. वो bother नहीं करता. You spend all the time until they express everything from their side. Yes, right. Great. Actually, the doctor who is spending this much time with their patients to understand everything about them, it's really good thing. No, any other allopathy doctor, normal doctors do that. They just go check up and give the treatment. That's all. Right. But this is directly focusing on the root cause. Yes. As you said, you spend long time with your patients, right? Every time, always there will be one unforgettable patient. Always will be there in one doctor's life. In doctor's life. Do you have anybody like that, or can you share any story that changed your life and that impacted very deeply on your life, and you learned something from that incident? Is there anything? Okay. Yeah. ऐसे तो there are multiple patients. Okay. But I will share one patient case. Not in detail, but superficially. Yes. So as it is confidential to share everything, so I will just share small things. Okay. When a lady came to me, she came with a walker in her hand. She was unable to move. She was unable to do her household chores. She was unable to do for herself also. Means जो काम हम हमारे लिए करते हैं या फिर बेसिक जो करते हैं वो भी नहीं कर पा रहे थे वो. And when she entered my cabin, okay, in door, मतलब door में ही खड़े रह के she was joining her hands. कि मैम मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर्स के यहाँ घूमी हूँ, मैं ऐसे ही स्टेज में हूँ सिंस 3 to 4 years. सो मुझे इसमें से बाहर निकालो. मुझे नहीं रहना है. एक तो ऐसा रहना है तो मुझे कुछ तो इंजेक्टेबल दे दो सो दैट आई कैन डाई पीसफुली. बिकॉज ये जो मैं स्टेज में हूँ, जो सफरिंग्स मेरे है, तो वो ऐसे है कि उससे अच्छा मरना ही इज द गुड सोल्यूशन. सो इट अफेक्टेड मी. मतलब वो पेशेंट आए भी नहीं, दरवाजे में ही शी प्लीड मी फॉर दिस. सो ऑब्वियसली दैट पॉइंट आई फेल्ट वेरी बैड. एंड मुझे अच्छा लगा कि अगर ये स्टेज पे ऐसे पेशेंट बोल रहे, अगर वी डिडंट ट्रीट देम, सो एज अ डॉक्टर आई एम लैकिंग समवेयर. सो या आई जस्ट वेलकम्ड हर. आई टॉक्ड विथ हर. उनसे मैंने उनका जो भी मेंटल स्टेट था, फिजिकल स्टेट था, कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और क्या क्या उनको फेस हो रहा है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे. ओके. सो डिटेल हिस्ट्री मैंने लिया, उनसे बात किया. शी क्राइड अ लॉट ऑन दैट डे. ओके. सो एक ऐसा होता है ना कि डॉक्टर्स
जब ये सुनते हैं उनको हैबिचुएट हो जाते हैं कि दे डोंट क्राई इन फ्रंट ऑफ पेशेंट. Okay, so I felt bad for her and I consoled her. Okay, so she felt good and I gave her some medicines. And after 1 month, जब वो आए तो उनके हाथ में वॉकर नहीं था. Seriously? Yeah, she came by herself. उनके हाथ में ना कोई वॉकर था, ना कोई सपोर्ट देने वाला था. Unbelievable. Yeah, she came to me after 1 month. और ये कुछ साल 2 साल का ट्रीटमेंट नहीं था. It just within 1 month. She came and she told me कि ये miracle है. And she really miracle. Yeah, and she told कि आप मेरे लिए भगवान बन के आए हो. तो ये स्टेटमेंट बहुत हेवी है मेरे लिए. So I told her कि ऐसा नहीं है. आई एम डॉक्टर, मेरा फोकस था कि आपको ठीक करना और वो मैंने किया है. इट्स माय ड्यूटी. What was your feeling after seeing her after 1 month without a walker? It was proud moment for me, obviously. Yeah, जो मैंने पढ़ा है, मतलब जो मैंने ओथ लेते हैं डॉक्टर्स की, नहीं हमको ठीक करना है पेशेंट्स को, उनको हैप्पी करना है, उनको वो बीमारी से दूर करना है. सो आई फेल्ट वेरी गुड एट दैट टाइम कि आई हैव डन दिस. मैं मेरे जो ओथ था, जो मेरी विश थी, वो मैं पूरा कर रही हूँ और वो आगे भी मुझे यही करना है. आई हैव टू ट्रीट माई पेशेंट्स totally, wholly, not just symptomatically, but at whole. I have to treat my patient whole, not just symptomatically. Great. Yeah. Unbelievable example. Yeah. How long does homeopathy takes to relieve chronic diseases? How long it takes? Chronic diseases, see, every chronic diseases उसकी एक अलग स्टोरी होती है ना. हर एक बीमारी, हर एक पर्सन की सफरिंग अलग अलग होती है. जैसे कि कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग टर्म रहता है, जैसे कि 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, कुछ में 3 to 4 years. कितना डीप है उनको वो जो डिजीज है, उतना डीप है. उसके लिए उन्होंने ऑलरेडी क्या क्या ट्रीटमेंट लिए हैं, सर्जरीज हुआ है, पेन किलर्स खाए हैं, कुछ इंजेक्शंस लिए हैं. तो ये उनका हर एक पेशेंट का हिस्ट्री लेने के बाद ही पता चलता है कि कितना टाइम लगेगा और उनकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, हाउ द पेशेंट बॉडी इज रिएक्टिंग टू होम्योपैथी. बिकॉज ऑलरेडी इतना सारा टैबलेट्स और इतने सारे मेडिसिन लेके उन्होंने उनकी ही इम्यूनिटी को वीक किया रहता है. सो हाउ देयर इम्यूनिटी इज बिल्डिंग अप एंड हाउ दे आर सपोर्टिंग टू होम्योपैथी मेडिसिन. तो ये सब इंडिविजुअलिटी पे फोकस करता है. या ऐसे स्पेसिफिक हर एक इंसान के लिए इतना ही टाइम लगेगा ऐसा नहीं है. या what is their duty? What is the rule for taking the homeopathy treatment? There are only 2 rules. First is कि खुद अगर 80% मेडिसिन उनको हेल्प कर रहे तो 20% इज ऑन द पेशेंट. ओके कि कितना सिंसियरली वो टैबलेट्स ले रहे हैं, कितना सिंसियरली जो डॉक्टर्स उनको बोल रहे हैं वो फॉलो कर रहे हैं और कितना सिंसियरली वो फॉलो के लिए आ रहे हैं. So यही रूल्स है, बाकी कोई रूल नहीं है. And they have to take the tablets regularly. Yeah. Consistency should be there. Yes. Consistency should Only be this there. is the rule. Yeah. ये खाना नहीं है, वो खाना नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. Okay. So the only thing is कि yoga, exercises, this I suggest to healthy and non-healthy both. Okay, because this is going to help you in future, in present, in future, always. Okay. So yoga exercises are the must thing everyone should focus for. Okay. Yeah. One question, general question, not about homeopathy. How to do meditation? Because I have seen so many people, they sit, they close their eyes, within 3 seconds they get distracted. Yeah. How to sit for a long time, and how to focus, and how to do concentrately, that with concentrate, how to do meditation. Okay. Any suggestions? Yeah, sure. Meditation is very difficult. अभी अगर देखा जाए अभी के जनरेशन्स में, अभी के यूथ में, मेडिटेशन इज वेरी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर एवरीवन. ओके बिकॉज जब भी हम शांत बैठने की कोशिश करते, देयर आर मल्टीपल थॉट्स इन आवर माइंड कि ये कब कैसे होगा, वो कैसे होगा, इसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला. सो दिस थॉट्स कीप मूविंग. राइट अनसर्टेनिटी, फ्यूचर प्रेडिक्शन. या कॉन्शियस माइंड रहने दो या सबकॉन्शियस रहने दो. इन स्लीप आल्सो वी थिंक दिस. एग्जैक्टली. ओके सम पीपल से कि मुझे ड्रीम्स भी वैसे ही आते.
फाइनेंस के आते हैं, पर्सनल लाइफ के Yeah. आते हैं. सो इन टुडेज वर्ल्ड इज क्वाइट डिफिकल्ट, बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर एनीवन. ओके, इफ यू वांट टू डू यू कैन गो फॉर इट. इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, 1 month. इमीडिएटली बैठ गए, मेडिटेशन हो गया, ऐसे नहीं होगा. कैसे शुरू करना चाहिए? Okay, so while meditating, the first rule is कि there should be quiet. Okay. The room should be very quiet. Okay. कि किसी का आवाज, डिस्टर्बेंस नहीं होना नहीं चाहिए. होना घर चाहिए. में करोगे तो obviously it's not possible. So you choose the place where there is no sound, Okay. rather than natural sounds, जैसे कि birds के हो गए, wind के हो गए. Oh, that's fine. Yeah, that's fine. Other than कोई दूसरा sound नहीं होना चाहिए. और कोशिश करना कि मेडिटेशन के वक्त कुछ तो लाइट म्यूजिक और मेडिटेशन के कुछ वीडियोस आते हैं आजकल यूट्यूब पे कि वो मेडिटेट करने के लिए हमको पुश करते हैं. Okay. कि आप आंखें बंद करो, फील करो यू आर इन सम डिफरेंट वर्ल्ड. ओके, फील दैट यू आर हियर, यू आर देयर, समथिंग इज देयर, इमेजिनरी थिंग्स वो बोलते हैं. सो वो सुनने, उस पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करो. फर्स्ट डे नहीं होगा, सेकेंड डे नहीं होगा, थर्ड डे नहीं होगा, 1 महीना लगेगा. लेकिन आपका टाइम देखो. पहले आप 1 ही मिनट बैठते थे, अभी यू आर सिटिंग फॉर 5 minutes in that position with that thought. कोई और थॉट नहीं आ रहा है. या इट विल टेक टाइम, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है. होगा लेकिन टाइम लगेगा. यस, सडन नहीं होगा, ऑब्वियसली नॉट. It's not possible from day one. It's not possible. What I do, I just start with Anulom Vilom, pranayam. Right. I spend my 10 to 15 minutes for pranayam first. Right. Then I try for meditation, but it's highly difficult actually. I'll suggest if someone really want to meditate, you can go to monastery. जो monk रहते हैं, you can go to their places. Okay. You can stay over there. And yeah, you will learn how to meditate. You will learn how to live the life. Okay. So I'll suggest कि अगर किसी को सच में जिंदगी जीना सीखना है, तो you please once visit monk or monastery. Okay. You will feel very good. और जिंदगी को देखने का जो नजरिया होता है वही पूरा चेंज हो जाएगा. Seriously? Yeah. Why? Because monks are, I can say, on earth are like second phase of God. Okay. Yeah, they are so natural, so pure people. They have very pure emotions. किसी के लिए कोई grudges नहीं, revenge नहीं, expectations नहीं, बस पॉजिटिव है. पॉजिटिव वाइब्स है उनके यहाँ. उनके यहाँ जाते ही ऐसा फील होता है कि वी आर somewhere on heaven on the earth. Yeah, so if someone wants to meditate और सब नेगेटिविटी छोड़ना है, अच्छा लाइफ जीना है, तो you can visit over there. Okay. Yeah, or you can read their books as well. There are multiple books. Yeah, I have read Think Like a Monk. Think Like a Monk. Yeah, that's my favorite book, and that's my first book. अच्छा. Yes, I started reading the book from that. Right. Think Like a Monk. It really changed my perception. Yeah, it's a very good. And it's easy book also, and because written by our Indian author. Yeah. Yes, that's why easy to understand. There are case studies also. Yes. Right. Any book you want to suggest? Think Like a Monk. For beginners? For beginners. Okay, if they want to start their journey. Yeah. How to read the book? Can you suggest? How to read the book? See, many people हैबिट नहीं रहती है एक जगह पर बैठना, कंटिन्यू कुछ तो पढ़ना. तो उनके लिए इंटरेस्टिंग बुक्स पहले इंट्रोड्यूस होनी चाहिए. जैसे कि कुछ स्टोरीज हो गए, इमेजिनरी होना चाहिए. ओके, जैसे कुछ ऑथर्स है जो हम रीड कर रहे तो फील होता है कि दिस इज हैपनिंग विद, वी स्टार्ट विजुअलाइजिंग दैट. या विजुअलाइजिंग दैट. अगर बोरिंग बुक्स पढ़ोगे स्टार्टिंग में ही तो इंटरेस्ट नहीं आएगा. सो सम इंटरेस्टिंग बुक्स यू शुड रीड. फिर उसके बाद धीरे धीरे फिलोसॉफिकल बुक्स, हेवी बुक्स जो वी कैन से, वो आप रीड कर सकते हो. लेकिन स्टार्टिंग में स्टोरी बुक्स हो गए, लव स्टोरीज आल्सो यू कैन गो फॉर समथिंग. ओके, या फिर क्राइम थ्रिलर भी रहते हैं कुछ, तो सस्पेंस, तो उसमें भी मजा आता है लोगों को पढ़ने में. तो इंटरेस्टिंग बुक्स से स्टार्ट करना चाहिए, एंड देन यू कैन स्टेप बाय स्टेप आप हेवी बुक्स, फिलोसॉफिकल बुक हो गए, बहुत सारे बुक्स है, यू कैन गो फॉर दैट.
What are the biggest misconception people have about homeopathy? That it is slow reacting medicines. Uh-huh. मतलब वो बहुत धीरे काम करती है, जैसे कि आपने अभी स्टार्ट किया तो आपको 6 महीने के बाद रिजल्ट आएगा. हाँ. तो ये बहुत बड़ा मिथ है होम्योपैथी के बारे में लोगों में. और होम्योपैथी जस्ट प्लासिबो. ओके. मतलब सिर्फ कुछ नहीं देते, बस ऐसे टैबलेट्स दे देते. तो ऐसे मतलब पेशेंट जो रिकवर हो रहे सिर्फ टैबलेट्स खा के तो नहीं हो रहे ना, वो मेडिसिन है उसमें, इसलिए वो रिकवर हो रहे. और ये बहुत बड़ा मिथ है कि टेक 6 months 1 year टू रिकवर. सो इट्स नॉट लाइक दैट. ओके. सो अभी मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न मेडिसिन है, मॉडर्न लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है. ओके, एडवांस लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है. अभी डॉक्टर्स को भी, जो डॉक्टर्स अभी बाहर मतलब फ्रेशर्स है, उनको भी वैसे ही सिखाया जाता है कि केस टेकिंग कैसा लेना चाहिए, कितना इम्पोर्टेंट है, क्या पूछना चाहिए, जिससे कि आपको पेशेंट्स की कमजोरी और स्ट्रेंथ पता चलेगी और उसके अकॉर्डिंग आप मेडिसिन दोगे. अगर आपका डायग्नोसिस प्रॉपर है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट प्रॉपर है, ओके, सो ऑब्वियसली विद इन 1 month 2 month आप रिकवरी के फेज में चले जाते हो. Right. Homeopathy tablets are too small, right? Like white, and they're too sweet. Yeah. I heard that, and most of the people say that it is made by sugar. Is this myth or truth? No, it's myth. Okay. Yeah. Of course they are sweet. बट उसमें भी डाइल्यूशन करके बनाया जाता है. Okay. तो जैसे कि शुगर केन जूस हो गया और उसमें मिल्क पाउडर आता है, काउ मिल्क पाउडर. तो ये दोनों को मिक्स करके इनको डाइल्यूट करके और फिर पिल्स बनाए जाते हैं. ओके. सो वी प्रिस्क्राइब दिस मेडिसिन्स फॉर डायबिटीज पेशेंट आल्सो, एंड आई हैव स्टॉप डायबिटीज पेशेंट्स के इंसुलिन स्टॉप किए हैं, टैबलेट स्टॉप किए बाय दिस विद पिल्स ओनली. सो दिस आर myth. This is myth. People should know about this because they are completely depending on the allopathy tablets and not for getting the proper treatment from the right doctor, and just getting the quick result after taking the allopathy treatment, but not for the long period. But this is very important that जड़ से निकालना, disease जड़ से निकालना is very important. उनके myths clear होना बहुत जरूरी है. हाँ, exactly. What health habits should children develop in their early life? Children? Okay. Nowadays, अभी के जो चिल्ड्रन देख रहे, इन्फेंट्स या फिर बच्चे हो गए, they are very much attracted or dependent on mobile phones, right? TVs and mobile phones. Yes. उसमें भी वो अच्छा कुछ नहीं देखते, या टू मच. उसमें भी अच्छा कुछ नहीं देखते, रील्स देखेंगे, गेम्स, इसके ऊपर वो डिपेंडेंट हो रहे. सो दिस इज देयर पेरेंट्स ड्यूटी, ओके, कि उनको इससे दूर कैसे रखना है. अभी पेरेंट्स भी बिजी हो गए हैं, बोथ मदर एंड फादर आर वर्किंग, और जो भी उनको टाइम रहता है उनको ऐसा है कि मुझे मी टाइम चाहिए, आई वांट टू स्पेंड माय टाइम टुवर्ड्स फॉर माई सेल्फ. फिर वो भी मोबाइल या उसमें देखने लग जाते हैं और उनके बेबी को भी वही देते थे. तो दे शुड स्पेंड मोर टाइम प्लेइंग विद देयर किड्स, व्हाटएवर इट इज. गार्डन लेके जाओ, मॉल लेके जाओ, घर पे ही प्ले विद देम, गिव देम टास्क, some of the other tasks, ask them to finish it off. So बच्चों में बच्चों जैसा बनना बहुत जरूरी है. नहीं तो ऐसे ही रहेगा तो इसके वजह से क्या हो रहा है ना, बच्चे चिल्ड्रन क्रैंकी हो रहे, इरिटेबल हो रहे, स्टबन हो रहे. चाहिए तो चाहिए मतलब चाहिए. मैंने देखा है, मतलब हमारे पास तो मोबाइल नहीं था जब हम छोटे थे, बट नाउ आई एम सीइंग द किड्स, दे आर हैविंग मोबाइल, टैबलेट्स, एंड दे आर on that. Only on that. Yes, and parents are also, if they don't give mobile, they will start crying. Yes. So उनको I want this. अभी क्राइंग को शांत करने के लिए पेरेंट के पास सिंपल सोल्यूशन है, दे दो. उनके पास सोल्यूशन और भी है कि बाहर लेके गए, घुमाने लेके गए, उनके साथ खेला, टाइम स्पेंड किया, यू नो, दे आर टॉकिंग विद देम, दे आर टेलिंग स्टोरीज, ये दे कैन डू. लेकिन अगेन parents are also choosing simple solution, easy solution. उनको दे दिया. Right. उसकी वजह से they are getting stubborn, irritable, cranky, rude at some point. Rude भी होते हैं, उनको बात करने का you know manner नहीं रहता है. So ये बच्चों का जो upbringing रहता है, this is up to only on parents. Yeah. What are the top 5 mistakes that people do in their early every day of life? Every day of life. Okay. What are the first is the waking up late.
Okay. Okay. And sleeping late also. Sleeping late and waking up late. हाँ. सुबह जल्दी नहीं उठना हाँ. और रात को लेट से सोना. Okay. ये बहुत इनिशियल मिस्टेक मैं बोलूंगी. एक्सरसाइज नहीं करना. ओके. बैठे बैठे ही काम अगर है तो whenever you have time, give time for yourself. You can, everyone can give 1 hour to Right. for themselves. Okay. Everyone can. कितना भी बिजी रहने दो. Anyone can give. Right. So वो नहीं कर रहे हो तो ये गलत बात है. Okay. Spending long hours on mobile phones, laptops, PCs, scrolling and doing and just fooling around. So this is also biggest mistake everyone is doing. और कोप अप नहीं हो पा रहे अभी भी स्ट्रेस से, सेडेंटरी लाइफ से. दे आर नॉट मतलब कोप अप नहीं हो पा रहे, सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे. Okay. कर रहे, हो रहा है, हो गया. क्या करना है? आज की जिंदगी है, जी ले. आगे का किसने देखा? Present. Yeah, they are living in present, not in future. So yeah, these things they should change. हाँ, और the most important, बाहर का जंक फूड खाना. Okay. It is tasty, I know. You can't resist, but you should control. Right. Yeah, घर में healthy खाना भी you can make it tasty. बाहर का junk food, coke, पिज्जा, बर्गर हो गया. So very dangerous. Yeah, ये stop होना चाहिए कहीं ना कहीं. What do you think about sugar? Should we eat or not? No. Why? Obviously not. अभी again many people ask, पहले भी तो हम खाते थे, फिर अब भी ऐसा क्या हो गया शुगर में? हाँ, right. Many people ask this. तो पहले हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, वो तो शक्करी तो खाते थे, फिर अभी क्या हो गया? Right. शुगरी स्वीट्स खाते थे, अभी क्या हो गया? Yes. अभी ये हुआ है कि अगेन कि आप लोगों में एक्सरसाइज नहीं है. पहले जितना खाते थे उतना बर्न भी करते थे बाय एनी वे. एक तो फार्मिंग करते थे या फिर खुद एक्सरसाइज के लिए टाइम देते थे. और इतना कंपटीशन भी नहीं था ना तब. अभी सब कुछ बढ़ गया है और अभी किसी को किसी के लिए टाइम नहीं, खुद के लिए भी टाइम नहीं है. तो आप अगर शुगर खा रहे हो, मैदा खा रहे हो, बाहर का ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो और बॉडी को कुछ मूवमेंट्स ही नहीं है, तो ऑब्वियसली बॉडी विल नॉट हेल्प यू. अगर बॉडी को नहीं आप देख रहे हो तो बॉडी भी आपको नहीं देखेंगे. डेफिनेटली इट विल अटैक यू. ओके. सो यस, शुगर खाना है तो उतना आपको बर्न भी करना पड़ेगा. सो यू कैन हैव इट without any questions or without any doubts. Right. I have seen one old person. Okay, he's 95 years old. And as you said, the old people were doing exercise. That's why they don't have any side effect of the sugar. Nowadays, this is in a trend that don't have sugar, don't have sugar. Right. It will affect on your health very badly. Right. But that person eats, have tea with 3 or 4 spoons of sugar every day. He always tells that कुछ नहीं होता, शुगर विगर खाने से कुछ नहीं होता. मैं 3-4 स्पून डाल के चाय पीता हूँ, कुछ नहीं होता. लोग सिर्फ बोलते हैं कि शुगर नहीं खाना चाहिए, बट दिस इज द मेन रीजन एज यू सेड. राइट. Yeah, the old people, they have done their exercise in their young age, and now they are fit. मतलब they don't have any problem now. कैसे होता है, अभी बोला जाता है कि इन्फेंट है, 1 year 2 year बेबी है, उसको जैसा मोल्ड करेंगे वैसा वो मोल्ड होगा. वैसे उसको हैबिट्स लगेंगे, मैनर्स मिलेंगे, जैसे उसको दिए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं. ओके. बॉडी का भी वैसा ही है. जब बॉडी को स्ट्रेंथ चाहिए, हेल्दी बनना है, तब अगर आपने ये सब शुगरी ड्रिंक्स खा रहे हो, पी रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तभी बॉडी को इतना वीक कर दिया है, तो आगे जाके इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. एवरी फैमिली में, एवरी घर में आप देखोगे इंडिया में कि जो ओल्ड है दे आर मोर हेल्दी देन यंगर वन. व्हाई? बिकॉज उन्होंने उतना फिजिकल एक्सरसाइज किया है. Exactly. अभी फिजिकल एक्सरसाइज है ही नहीं. अभी आप देखोगे कि 18-19 जो एज रहता है लड़कियों में, उनका वेट है 60s में, किसी का तो उसके ऊपर भी है. फिर उनको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, दे आर सफरिंग फ्रॉम PCOD, दे आर सफरिंग फ्रॉम थायराइड. और फिर उनको बोलते हैं कि वजन कम करो, तो उसके ऊपर उनका रिएक्शन रहता है कि मैं मोटी नहीं हूँ, आप मुझे बॉडी शेमिंग कर रहे हो. अगेन बॉडी शेमिंग का इश्यूज आ जाता है.
बट यस ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Right. अगर वजन बढ़ रहा है आपको तो वजन कम करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. It's their responsibility. their responsibility and how it is going to work by exercise only. सिर्फ बैठे बैठे मैंने शुगर बंद कर दिया, मैंने राइस बंद कर दिया, मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया तो मेरा वजन कम होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है. और प्रॉपर बर्न कर रहे हो, एग्रेसिव एक्सरसाइज कर रहे हो फॉर 1.5 hour, यू कैन हैव एनीथिंग व्हाट यू वांट. कुछ भी बंद करने की जरूरत नहीं है. Even I do same. Okay, I'm foodie, and my best friend, he is very cautious about his health. He don't eat junk. No sugar, nothing. He's very cautious about the health. But what I do, I go for exercise to eat junk food. Junk food, right? Yes, this is what I do. But he go for exercise to maintain. He follows the diet and all everything. A kind of proper strict diet person. Right. But I go for workout to eat the outside food. And because I'm very foodie, that's my weakness. So everyone should learn from you then. But soon I also have to stop because it's not gonna be for long. See Nikunj, how it works. Everyone says we have only one life. कल किसने देखा? Right. So just live the life which on at the present time. Okay. बॉडी को सब चीजों से रेस्ट्रिक्ट करोगे तो एंजॉय कब करोगे? Exactly. Okay. खाना रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, खाओ लेकिन लिमिट्स में खाओ. हर एक चीज को लिमिटेशंस रहती है. Right. लिमिट्स में खाओगे तो अफेक्ट नहीं करेगा. लिमिट के बाहर जाके करोगे तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू अफेक्ट. या And exercise is must. मस्ट. I believe in that. Exercise in the morning, giving 1 hour for exercise will take care of next 24 hours and gives the energy to work for next to cover the work of next 48 hours in 24 hours. Yeah, right. That's true. Right. Yes, that's why I believe doing exercise in the morning it's better than the evening. Evening. Yes. Morning exercise are better than the evening. Exactly. Yeah. ऐसा क्यों होता है? मतलब बहुत लोगों का मैंने देखा है कि they eat so much but they can't gain their weight. मोटे नहीं होते. मतलब they want to gain their weight, they are skinny. But eat so much, they have big question mark. मैं बहुत खाता हूँ but मेरा weight ही नहीं बढ़ रहा है, मेरा fat ही नहीं बढ़ रहा है. I want to maintain my weight, everything. ऐसे क्यों होता है? Actually there are two factors. अभी जो ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत खाती हूँ या खाता हूँ लेकिन मेरा वेट ही नहीं बढ़ रहा है. सो इट्स दैट उनका बोनी वेट जो है वो अच्छा रहेगा. मसल वेट नहीं है, फैट नहीं है, लेकिन उनका जो बोनी वेट है इट विल बी गुड. यू नो देयर आर डायमीटर्स फॉर वेट ऑल्सो, जिसको BMI बोल सकते हैं. उसमें भी फैक्टर्स रहते हैं कि बोनी वेट हो गया, मस्कुलर वेट हो गया, फैट एक्यूमुलेशन कितना है, ये फैक्टर्स रहते हैं. तो वेट इज जस्ट नॉट कि मोटा होना, ओके, या फिर फैट एक्यूमुलेट होना. वेट ये भी होता है कि आपके बोन वेट कितना है, बोन हेल्दी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इट इज गुड. वेट उनका अच्छा है लेकिन वो स्किनी है, तो जो वेट है वो उनका बोन का वेट है. ओके. और जो कम खाते हैं, जो आप बोल रहे हो, ओके, जो कम खाते हैं, जिनका वेट ज्यादा हो रहा है फिर भी, सो एक तो उनके उसमें कुछ तो बीमारी है, जैसे कि थायराइड या PCOD हो गया, या फिर उनका जो फैट मेटाबॉलिज्म रहता है वो वीक है. ओके. तो थोड़ा भी खाए इट कन्वर्ट इनटू फैट. फैट बर्न नहीं होता उनके इसमें, फैट में ही डिपॉजिट होता है. फैट अवॉइड नहीं होता है, तो फैट में डिपॉजिट हो के वो वजन बढ़ता है या फिर ओबेसिटी बढ़ती है. हम सुनते हैं कि बादाम इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ एंड फॉर टू बिकम मेंटली स्ट्रांग, राइट? कैसे खाना चाहिए बादाम? मतलब डायरेक्ट खाना चाहिए या फिर पानी में रात भर सोक करके खाना चाहिए? व्हाट इज द राइट वे टू ईट बादाम? ओके, सो आलमंड्स आर गुड फॉर योर हेल्थ. बोन्स के लिए बहुत अच्छे हैं. ओके. वो आप डायरेक्ट रॉ खाओ तो भी इट्स गुड, सोक करके खाओ तो भी अच्छे हैं, बट वो खाने चाहिए 4 पर डे. या वो आप रॉ खाओ या फिर सोक करके खाओ, डजंट मैटर. 4 इज इनफ. ओके. और उससे मेमोरी शार्प होती है. आप डम थे, आप एकदम इंटेलिजेंट हो गए, ऐसा नहीं. ऐसा कुछ नहीं है. अखरोट के बारे में भी मिलते हैं ना, दैट इज द शेप ऑफ द ब्रेन. इफ यू ईट दैट यू विल बिकम मेंटली स्ट्रांग. ऐसा कोई यू नो फूड आइटम नहीं आया है कि जिसकी वजह से आपकी मेमोरी स्ट्रांग और शार्प होती है. इट्स नॉट लाइक दैट. वो बचपन से यू नो हेरिडेटरी भी होता है कि मम्मी पापा
में से कोई तो एकदम स्मार्ट है ओके तो बच्चों में आया है, या हाँ। फिर ऐसा भी होता है कि दोनों भी स्मार्ट है लेकिन बेबी का उतना है नहीं, हाँ तो इट्स नथिंग ऑन फूड आइटम्स, ओके जो है वो है वो है. What are the signs of our mental stress is affecting on our health? What are those signs? द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइन इज इंसोम्निया। रात भर मुझे नींद नहीं आती है, हाँ मुझे नींद ही नहीं आती है। नींद ओके, सो जैसे आपने पूछा कि स्ट्रेस का क्या सिम्टम्स है, तो इंसोम्निया मतलब रात भर नींद नहीं आना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिम्टम फॉर स्ट्रेस। ओके अभी उसके लिए कुछ लोग पिल्स भी लेते हैं, स्लीपिंग पिल्स, ओके, डिपेंडेंट हो जाते हैं स्लीपिंग पिल्स पे। एक पिल से उनको कुछ नहीं होता है, उनको 2 लेने पड़ते हैं, 3 लेने पड़ते हैं, तब जाके उनको वो भी प्रॉपर नींद नहीं आती जो हम लोग लेते हैं। 7 to 8 आवर्स स्लीप इज इम्पोर्टेंट एट नाइट, लेकिन वो नहीं होता है उनसे। 3-4 आवर्स सो गए, फिर नींद खुल गई, फिर वापस से वो फिर पूरा दिन ही खराब जाता है, बिकॉज नाइट स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी अराउंड 7 आवर्स। 7 hours. वो होनी ही चाहिए। वो अगर नहीं हो रही है तो उसके वजह से भी बहुत सारी बीमारियां आती है कोई भी इंसान में। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी नींद नहीं आ रही है तो कुछ ना कुछ सोचते ही है, ओवर थिंकिंग होता है, या तो कुछ काम कर ले, या तो पीसी खोल के बैठ ले, या तो मोबाइल स्क्रॉल करो। ये और अगेन इम्पैक्ट करता है आपके स्लीपिंग सेल्स को। अगर आप एक्टिव है तो वो कैसे इनएक्टिव हो गए ना, यू आर एक्टिव till 12-1 scrolling your phones and PC, so sleeping cells will not be inactive, वो एक्टिव ही रहेंगे। फिर जब आप सोना चाहोगे तब वो आपको हेल्प नहीं करेंगे। तो स्लीपिंग टाइम इसलिए बोला गया है कि 10 से 11 के बीच होना चाहिए, बिकॉज तब आपके जो स्लीप सेल्स है वो इनएक्टिव होना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन आप अगर फोन देखोगे, ये करोगे, तो आप उनको वापस एक्टिव कर रहे हो, तो उनका जो टाइम पीरियड है वो चला जाता है। देन बाद में इफ यू ट्राई टू स्लीप यू विल नॉट गेट स्लीप, राइट? ओके, सो मेन सो फॉर दिस सोल्यूशन इज ट्राई टू स्लीप around 10 to 11 for yes. 7 to 8 hours 7 to 8 hours sleep. So आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठोगे। ऐसा कुछ है मतलब if you are not sleeping in a night and late sleeping and waking up early, भूलना शुरू होता है क्या? चीजों we start forgetting the things, small things। हाँ, forgetful होता है, उनको delusions होने लगते हैं, hallucinations होने लगते हैं कि कुछ तो है, someone is watching me। मतलब धीरे धीरे यंग एज में होता है या लेट? कोई भी एज में हो सकता है, ऐसा कुछ एज फैक्टर नहीं है। अभी यंग एज में ही सब हम देखने को मिल रहा है। अभी डेल्यूजन्स होने लगते हैं कि कुछ तो है, कोई तो है, मतलब धीरे धीरे वो मेंटली अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। डिप्रेशन आना लगता है, लोगों के सामने जाना, सोशली होना उनको डर लगता है, फियर आ जाता है, एंजाइटी अटैक्स आते हैं उनको कि कुछ ट्रिगर हुआ, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ किया उनके अपोज में, तो शिवरिंग होने लगते हैं। एंजाइटी अटैक्स में खुद को ही पैक करके रखते हैं एक रूम में। तो ये सब बढ़ रहा है, इट्स वेरी रॉन्ग थिंग, और ये यंग एज में ही हो रहा है, इसके लिए मुझे बुरा लगता है। सो या तो यंगस्टर शुड थिंक ओवर इट एंड शुड चेंज देयर सम लाइफस्टाइल्स, जो वो चेंज कर सकते, जो उनके हाथ में है, दे कैन डू इट। बिकॉज ये अगर पीरियड चला गया तो it is not going to come back. Yeah. What is the skincare according to you? Eat healthy food. Okay. और hydration is very important for skin. Okay. So drink plenty of water. 3 to 4 liters minimum. Every day. And basic skincare, I'll suggest wash your face properly with whatever face wash you're using. Give them tone. Keep your skin toned by toner. And use some serum and moisturizer. These are basic skin routines I'll tell my patient. ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, थोड़ा ही इन्वेस्ट करना है स्किन में, बिकॉज एक्सटर्नल एप्लीकेशन विल हेल्प यू फॉर स्मॉल टाइम, बट इंटरनल वॉट एवर यू आर कंज्यूमिंग इट विल लास्ट फॉर लॉन्ग। ओके मैं देखा है एंड इवन आई सेल्फ एक्सपीरियंस दैट अगर टेंशन होता है या फिर कुछ तो दिमाग में चल रहा है फॉर 1 or 2 days लॉन्ग टाइम, वो चेहरे पे दिख जाता है, चेहरा का शार्पनेस या फिर चार्मनेस कम हो जाता है। इसी क्यों होता है? एक्चुअली मेनी टाइम्स आई हैव सीन कि
गुस्सा हो रहा है, एक एंग्री पेशेंट या फिर एंग्री पर्सनालिटी है किसी का, बात बात पे गुस्सा होना, या फिर बहुत मसालेदार स्पाइसी खाना, दे हैव मल्टीपल पिंपल्स, एक्ने ऑन देयर फेसेस, ओके। सो या फिर ओवर थिंकिंग करना, स्ट्रेस में होना, या फिर नींद नहीं आना तो डार्क सर्कल्स दिखने लगते हैं। 2 दिन आप प्रॉपर नींद में लिए तो यू विल सी डार्क सर्कल्स ऑन योर फेस, अराउंड योर आईज, ओके। प्रॉपरली सोए नहीं, ज्यादा स्ट्रेस में हो तो एक्ने होते, बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, ओके। हॉर्मोन्स आर की फैक्टर और की रोल इन एवरी ह्यूमन बीइंग. Whatever you are thinking, whatever you are eating, and whatever your lifestyle is, it will directly hamper your hormonal imbalance. अगर वो हार्मोन स्टेबल नहीं है तो इट विल एक्ट, हेयर फॉल हो रहा है, यू नो, एक्नेज आ रहे हैं, पिगमेंटेशंस हो रहे हैं, ओके। फीमेल्स में पीरियड्स इरेगुलरिटी है, पीसीओडी हो रहा है। सो इसके लिए हार्मोन्स का बैलेंस होना जरूरी है, और हार्मोन्स तभी बैलेंस्ड रहेंगे जब आपका लाइफस्टाइल सॉर्टेड है, हेल्दी है, आपका डाइट हेल्दी है, ओके। अगर ये चीजें प्रॉपर है और यू कैन डील विथ योर स्ट्रेस मैनेजमेंट, यू नो हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, अगर ये चीजें आप कर रहे हो, एंड एक्सरसाइज अगेन, ये चीजें आप कर रहे हो, वाटर, yeah, you won in your life. And plenty of hydration is important for skin and hair. Okay. How important proper sleep, hydration, and stress management to maintain a good health? It is very important. It's like sleep, hydration, and stress management. जो ये कर लिया तो I can say they won in their life. Okay. इतना important है. Okay, because hydration is the key role for every function in our body. Okay. मोशंस हो गए, है ना, यूरिन हो गया, ओके, या फिर स्किन हेयर हो गया, फिर ड्राइनेस, एनीथिंग. वाटर इज लाइफ फॉर आवर बॉडी. सो हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, ओके. स्लीप अगेन 7 to 8 आवर्स स्लीप, वो बनाया ही पैटर्न है वैसा. आप उसको डिस्टर्ब करोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू हैपन. अगर स्लीप डिस्टर्ब करोगे हॉर्मोन्स पे अफेक्ट होगा, एंड यू विल सी द कॉन्सिक्वेंसेस, ओके. एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट सबको आना ही चाहिए, बिकॉज अभी जो सिचुएशन है, अभी का जो सबका लाइफस्टाइल है, सब एवरीवन हैव सम स्ट्रेस, सम एंजाइटी, ओके. सो उसमें हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, कोप अप नहीं कर पा रहे, या फिर कोई भी सुसाइडल थॉट्स आ रहे, we are doing any nonsense things for it, so it is not going to work. How to cope up with it, ये जरूरी है, ये इम्पोर्टेंट है, सबको आना ही चाहिए. सबको कैसा है, सबके लिए ये एक ही रूल नहीं है, सब अलग अलग तरीका ढूंढ सकते हैं, जिसको जैसा पॉसिबल है. कोई शेयरिंग से अच्छा लगता है किसी को, किसी को अकेले में रोने से अच्छा लगता है, अकेले में गुस्सा निकालने से अच्छा लगता है, एक्सरसाइज करने से अच्छा लगता है, और फिर कोई अकेला ही बाहर चला गया, यू नो, आउटिंग, स्पेंडिंग टाइम विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली, और विथ योरसेल्फ, उनको वैसा अच्छा लगता है. सो ये हर एक के पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है. उनका सोल्यूशन उनके पर्सनालिटी के साथ रहता है. बस सोल्यूशन ढूंढो, भागना नहीं है. कोप अप विद द सिचुएशंस, डील विद द सिचुएशंस. आजकल क्या हुआ है, सब कुछ सब लोगों को पता है बिकॉज ऑफ इंटरनेट. And whenever we tell or we listen from somebody, whenever giving suggestion or taking the suggestion, what they tell, मुझे सब पता है, but they don't do anything. Right. This is the problem. ज्ञान दे रहे हो, छोड़ दो. I know that. See, nowadays ज्ञान देने वाले बहुत है. There are multiple. बहुत सारे लोग हैं. Okay. So किसका कितना सुनना है और कैसे रिएक्ट करना है, ये हमारे ऊपर है. Right. Okay. सोसाइटी में अच्छा बोलने वाले कम है, बुरा बोलने वाले बहुत है, मॉक करने वाले बहुत है. सो ये भी आना चाहिए, हाउ टू डील विद दिस टाइप ऑफ पीपल. या सो इट इज ऑल्सो सम थिंग्स यू शुड लर्न फ्रॉम समवन, है ना. वैसे जैसे कि बच्चों से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हमसे छोटे हैं उनसे भी बहुत कुछ सीख सकते हैं. उसमें ईगो लाने से कुछ नहीं होने वाला. इट इज योर लॉस. ओके. सो जहां आपको सीखने को मिल रहा है अच्छा कुछ, तो गो देयर एंड लर्न. एंड लर्निंग शुड बी थ्रू आउट द लाइफ. ऐसा नहीं कि हो गया पढ़ के, हो गया सीख के, ऐसा नहीं. इट कम्स विथ एवरी डे. रोज हम सीख सकते हैं कुछ ना कुछ.
once we are born, Hmm. एक तो born or death is not in Yes. our hand. Huh. Okay, Yeah, that's but how to live the life from born to death is in our hand. right. Completely in our hand. It's True. our decision. हमारी body है, Hmm. हमारा mind है, हम decisions ले सकते हैं. Right. So why to waste on negative things and negative people? Hmm. Go search for happiness. Hmm. क्या चीजों से आपको खुशी मिल रही है? Go हाँ. and search Right. and just enjoy your life. Hmm. ऐसा मुझे लगता है. Yeah, that's true. Why hair fall is becoming a common in young people and how to prevent it? Hair fall again, sedentary lifestyle. हाँ. प्रॉपर खाना नहीं, जंक हम्म, फूड. हेयर फॉल के लिए क्या हेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? प्रोटीन्स. Right. ओके, प्रोटीन नहीं दे रहे हो तो हम्म, हेयर का रूट वीक होने लगता है. हम्म, फिर सन रेज, हाँ. है ना, फिर डस्ट, हम्म, ये सब चीजें आपके हेयर के रूट पे इम्पैक्ट करते हैं. हम्म, एंड अगेन स्ट्रेस फैक्टर. हम्म, ओके, और कुछ डिजीजेस है जिसके वजह से हेयर फॉल होता है, जैसे कि फीमेल्स में पीसीओडी हो गया. हम्म, और जनरली हम मेल में ज्यादा देख रहे हेयर फॉल. ऑल्सो इन मेल वी कैन सी मोर Okay. बिकॉज ऑफ स्ट्रेस. हाँ. Okay, males, we don't generally talk about male, हम्म, you know, Yeah. problems. Yes. We only just go for females के, females का stress factor ये वो. Hmm. But males को obviously stress रहता है, professional also and personal also. Right. Okay, so इसके वजह से भी मेल्स में ज्यादातर देखना मिलता है कि हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है. हम्म, फिर उनके में ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी के इश्यूज ज्यादा देख रहा है एज कम्पेयर टू फीमेल्स. द रेशियो इज मोर इन मेल. Pressure is high. Yeah, depression is high. So we should talk about male issues also, male mental health also. If every listener could follow one health principle from today, what would you want to tell that? One health tip. Health principle. Okay. Hmm. Be positive. Right. B, root cause. Yeah. Be positive. Be positive, because negative thoughts and negativity destroy every human being. हाँ. So positive, because negative होना it's very easy. Positive बन के रहना, positive सोचना is very difficult nowadays. So be positive. I'll suggest everyone कि ये एक मंत्रा है healthy lifestyle जीने का. पॉजिटिव रहो. वो कैसे रह सकते हो? देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव. सो बी पॉजिटिव. दिस इज द ओनली मंत्र आई कैन से. It's true. If we become a positive, environment will become a positive. Health, life, everything. हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो हम लोगों को नेगेटिव ही दिखेगा कि ये भी गलत है, वो भी गलत है. एवरीवन इज रॉन्ग एंड नेगेटिव. पॉजिटिव सोच रहे तो सब पॉजिटिव ही दिखेगा. सो अल्टीमेटली आप हेल्दी लाइफस्टाइल के पाथ पे ही जा रहे हो. आई हैव क्लियर्ड सम मिथ्स अबाउट होम्योपैथी जो अभी भी है सोसाइटी में कि ये स्लो है, ये है, वो है. सो आई हैव क्लियर्ड सम मिथ्स अबाउट होम्योपैथी. एंड या आई एम फीलिंग गुड टुडे दैट आई हैव शेयर्ड माय some information about health, mental health, physical health and everything. Yes. So I hope some people will take positive things from this and they will include in it. Okay.